As promised previously, today I shall be talking about transactional analysis, which is one of the important aspects of resolving conflict. Now, concept of transactional analysis was given by concept was given by Eric Berne. By Eric Berne. Concept of transactional analysis was given by Eric Berne and Mr. Harris and Jongewald Mr. Harris and Jongewald popularized the concept of transactional analysis. Concept of transactional analysis. I mean, the person behind giving the concept of transactional analysis was none other than Eric Berne, a great German psychologist, and this concept was popularized by two authors, Mr. Harris and Jongewald. Transactional analysis. Before I start discussing concept of transactional analysis, I must tell you why transactional analysis becomes imperative and important in the study of organizational behavior. So, transactional analysis enables an individual to analyze and understand human behavior. This does mean that human behavior can be analyzed and understood with the help of transactional analysis. That is why transactional analysis has got significance in organizational behavior. Therefore, coming to the next aspect, transactional analysis is a method of analyzing a transaction. Transactional, as the name suggests, transactional analysis is the method of analyzing a transaction. Therefore, the most important question arising herewith, what do we mean by a transaction? What is transaction? जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन बिहेवियर को समझने और उसकी व्याख्या करने के लिए. तो यानी कि यहाँ शब्द है ट्रांजैक्शन को समझना, ट्रांजैक्शन का एनालिसिस. तो ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? What do we mean by transaction? According to Eric Berne, a transaction is this is the best analysis of a transaction. A transaction is nothing. A transaction is nothing but a social intercourse
in which a transaction is nothing but a social intercourse between two or more individuals who counter each other. Who counter each other. तो ट्रांजैक्शन क्या है? तो ट्रांजैक्शन एक सोशल इंटरकोर्स है। किसके किसके बीच? तो दो या दो से अधिक इंडिविजुअल्स के बीच। मतलब यह हुआ कि ट्रांजैक्शन जब कभी भी होगा तो कम से कम दो इंडिविजुअल्स के बीच होगा। और इसी ट्रांजैक्शन की व्याख्या का नाम है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अब this is the simplest concept of transactional analysis. In every social intercourse, there is a stimulus. In every social intercourse, there is a stimulus provided by one individual, provided by one individual, and a response to that stimulus, and a response to that stimulus given by another individual. इसको जरा समझना जरूरी। हर सोशल इंटरकोर्स में एक व्यक्ति स्टिमुलस प्रोवाइड करता है और दूसरा व्यक्ति उस स्टिमुलस का रेस्पॉन्स देता है। मतलब कि स्टिमुलस इज फॉलोड बाय रेस्पॉन्स, एंड दिस स्टिमुलस जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे मैं कहता हूं कि डू दिस पीस ऑफ वर्क, यस सर, तो डू दिस पीस ऑफ वर्क इज अ स्टिमुलस, यस सर, वो जो रिप्लाई दूसरे व्यक्ति के द्वारा है, दिस इज रेस्पॉन्स। तो यह जो स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप is known as a transaction. ट्रांजैक्शन और कुछ नहीं है, सिर्फ ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप। और इसी स्टिमुलस रेस्पॉन्स रिलेशनशिप का एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इज नोन एज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। I do hope everybody would be getting my points. Next relevant question, rather next natural question that comes up for consideration before us, कि as to why transactional analysis, which is also known as a stimulus response relationship, occupies a significant position in the study of organizational behavior. Now there are two reasons due to which this concept became popular in the organizational behavior and in the study of conflict management.
एंड दिस टू रीजन, दो कारणों से ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का महत्व बढ़ जाता है। और ये दोनों कारण, पहला कारण, फर्स्ट रीजन इज कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना बहुत आसान, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसको समझना बहुत बहुत आसान है। दूसरा रीजन कि इट प्रोवाइड्स a fascinating tool, it provides a fascinating tool for analyzing and understanding the complex interpersonal relationship. पहला रीजन इसके पॉपुलराइज होने का कि इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इजी टू ग्रास्प। दूसरा रीजन कि इट प्रोवाइड्स ए fascinating tool, it provides a fascinating tool for analyzing and understanding the complex interpersonal relationship। मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और उसी इंटर रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्सिटीज को जो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट कर दे उसका नाम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, not only transactional analysis not only provides fascinating tool for analyzing and understanding the complex interpersonal relationship, but also it provides an effective method for improving the complex interpersonal relationship। यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को समझना, उसकी व्याख्या करना और उसको इम्प्रूव करने का जो फैसिनेटिंग टूल है, दैट टूल इज प्रोवाइडेड बाय ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। इट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन ट्रांजैक्शनल एनालिसिस becomes very very important in the study of organizational behavior। Now Eric Berne says that कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कैन बी डन, किसने कहा? एरिक बर्न साहब, कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल TA स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कैन बी डन by analyzing transactional analysis can be done by analyzing ego states of an individual। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं? ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हम ईगो, किसी भी इंडिविजुअल के ईगो स्टेट्स की व्याख्या करने के बाद कर सकते हैं। यानी कि ईगो स्टेट को एनालाइज
करने के बाद हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की व्याख्या कर सकते हैं। तो अब अगला महत्वपूर्ण सवाल यहाँ उठ खड़ा होता है कि ये ईगो स्टेट क्या है। एरिक बर्न सेज दैट कि एवरी नॉर्मल एवरेज एडल्ट और इंडिविजुअल ऑपरेट्स फ्रॉम 3 ईगो स्टेट्स। हर व्यक्ति 3 ईगो स्टेट्स के द्वारा संचालित होता है, उसका बिहेवियर 3 ईगो स्टेट्स के द्वारा डिटरमिन होता है। ये 3 ईगो स्टेट्स क्या हैं? पहला पेरेंट ईगो स्टेट, दूसरा एडल्ट ईगो स्टेट और तीसरा चाइल्ड ईगो स्टेट। तो हमारा बिहेवियर इसी तीनों एक ईगो स्टेट से निकलता है और हम इसी तीनों ईगो स्टेट की व्याख्या करने के बाद ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को सफलतापूर्वक संपादित कर सकते हैं। तो हम ईगो स्टेट्स पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड ईगो स्टेट की व्याख्या करें, उससे पहले यह आवश्यक समझ लेना होगा कि ईगो स्टेट है क्या। व्हाट इज और व्हाट डू वी मीन बाय ईगो स्टेट? ईगो स्टेट्स क्या है? व्हाट इज ईगो स्टेट? तो ईगो स्टेट is a system of feelings ego state is a system of feelings accompanied by a related set of behavior. Related set of behavior. क्या मतलब इसका? ईगो स्टेट इज ए सिस्टम ऑफ फीलिंग्स, मतलब ईगो स्टेट फीलिंग्स, थिंकिंग और बिहेवियर का सिस्टम। ईगो स्टेट 3 बातों को ध्यान रखना है। ईगो स्टेट किसका सिस्टम है? फीलिंग का, थिंकिंग का और बिहेवियर। मतलब कि व्हाट एवर बिहेवियर इज इन्वोक्ड, इट कैन ओनली बी इन्वोक्ड फ्रॉम 3 ईगो स्टेट्स। जो भी बिहेवियर इन्वोक होता है इंडिविजुअल के द्वारा, वह सिर्फ ईगो स्टेट के द्वारा ही हो सकता है। और ईगो स्टेट्स कितने हैं? ईगो स्टेट्स, देयर आर 3 ईगो स्टेट्स। फर्स्ट पेरेंट ईगो स्टेट, सेकंड एडल्ट ईगो स्टेट एंड थर्ड चाइल्ड ईगो स्टेट। और ये तीनों ईगो स्टेट हर इंडिविजुअल में सार्वभौम रूप से विद्यमान होता है। ऑल दीज 3 ईगो स्टेट्स आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन एवरी एवरेज इंडिविजुअल। और इस तीनों ईगो स्टेट के अपने अपने बिहेवियर होते हैं, अपना अपना संविधान होता है, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसकी अलग अलग व्याख्याएं होती हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तीनों ईगो स्टेट की डिफरेंट एनालिसिस करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे कि पेरेंट ईगो स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडल्ट ईगो स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और चाइल्ड ईगो स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और उसके आधार पर हम सर्टेन बिहेवियर पैटर्न को ही रेखांकित करने की कोशिश करेंगे कि पेरेंट ईगो स्टेट का बिहेवियर किस तरह का होगा, एडल्ट का और चाइल्ड का बिहेवियर पैटर्न कैसा होगा। थैंक यू।